viewers हैं, they will find the topic today interesting because it's quite a taboo as well, the topic, but हम लोग इसको science की perspective से समझाएंगे आज. So, yeah, if you want to say anything more on this. I think अक्सर समझा जाता है हमारे कल्चर में टैबू और कई चीजों के बारे में एक झिझक सी होती है बात करने की, तो हम इसको एक टेक्निकल तरफ से इसको अप्रोच करेंगे और आपको साइंस के बारे में बताएंगे कि क्या हमें पता है, क्यों पता है, और आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देंगे. तो चलें शुरू करते हैं, शुरू करेंगे नॉन कन्फॉर्मिस्ट और मैं फिर बाद में I'll take over. चलें फिर आगे चलते हैं. जी, तो आज का टॉपिक as you saw in the presentation was evolution of sex, कि जिन्स का इर्तिका कैसे हुआ, जिनसियत ये किस तरह से शुरू हुई. तो again, जब हम सेक्स का सुनते हैं, we consider it as a taboo. We look the other way, हम दूसरी तरफ देखते हैं, हम शर्माते हैं, या किसी दो जानवरों को हम जो देखते हैं, when they're actually engaging in intercourse, so we start laughing. But sex is basically the recipe for life. The way life has replicated, sexual basis पे ये expansion has proven to be one of the most effective strategies for evolution. Now, what is sex? Basically, it's one individual's or one organism's जो उनका जो genome होता है, splitting it into half, फिर उस दूसरे ऑर्गेनिज्म के जीनोम को स्प्लिट हाफ करके या उसकी 50% जीन्स लेके उसे कंबाइन करके जो ऑफस्प्रिंग ऑर्गेनिज्म बनता है, उसे इस एक्ट को, इस प्रोसेस को सेक्स कहते हैं. Obviously, humans along with other animals, we use this means or this activity or this process to generate copies of ourselves through our offsprings. हम अपनी genes उनको pass on करते हैं. 50% father passes on the genes, 50% the mother passes on the genes. लेकिन यहाँ पर थोड़ी sexual asymmetry है. We will talk about that today. कि one individual या one sex has to implant its genome, half या 50% of its genes onto the partner जो दूसरा individual होता है उसके अंदर, और उसकी fertilization, उसकी fusion से zygote बनता है और फिर embryo बनता है, fetus बनता है, और फिर एक नया individual in the form of a baby or the offspring of that animal comes into being. लेकिन ये process सिर्फ limited नहीं है सिर्फ animals के पे या human beings पे. Some microscopic life, they have different ways of reproduction as well. So they have sexual and non-sexual ways of reproduction too. तो जब sex की बात आती है तो we also kind of get excited because evolution ने prefer किया है, evolution ने sex को इस तरह से evolve किया है that it is pleasurable, it gives an advantage. क्योंकि when you see from the perspective of the genes have to be passed on to the offspring. हम लोग एक vehicle हैं, we're just kind of a vessel जिसमें हम अपनी genes carry कर रहे हैं, and ये जो vessel है ये हमेशा के लिए जिंदा नहीं रहती. Obviously it ages, it dies out. तो genes के लिए sex is basically a tool to multiply themselves and pass on to the next generation in the form of reproduction. So sexual reproduction compared with asexual reproduction is a much more I would say effective way of ensuring the survival of organism. हालांकि इसमें obviously थोड़ी difficulties भी आती हैं. You see that cloning would be easier, लेकिन variation in evolution जिसके principle पे adaptability के chances, survival के chances increase होते हैं. That relies on both parents जो अपनी genes लाएं और उसकी fusion और उसके अपनी अपनी variations के combination से एक नया offspring बने जो जिसको both mother and father का advantage हो. जी मोमो, next slide. Okay. So, what are the events that actually led to sex? Sex आया कैसे? ये हम लोग तो macro organisms को देख के कहते हैं कि sex हो रहा है. Let's just go back a bit in history कि sex कैसे evolve होगा. तो photosynthesis का तो सब पता, आप लोगों को पता है कि we use plants or unicellular organisms first use primitive photosynthesis. Prokaryotes जो थे, जो one of the first cells to have evolved around 3.5 billion years ago.
वो एक प्रिमिटिव प्रोसेस यूज कर रहे थे फोटोसिंथेसिस का, जिसमें हाइड्रोजन साइनाइड को यूज करके दे वर बेसिकली not using oxygen in a carbon dioxide rich environment. So later जो photosynthesis basically shift हुआ oxygenic photosynthesis पे around 2.5 billion years ago, जिसमें जो उन organisms ने, उन prokaryotes ने water और sunlight को use करना शुरू किया, and they started giving or producing oxygen or obviously glucose as a result to make their energy. Now जो oxygenation event हुआ वो इतना ज्यादा toxic था for life that was not using oxygenation, जिसे हम anaerobic life कहते हैं, तो उनके लिए एक mass extinction event हुआ. Most of that life was wiped out in the great oxidation event जो कि 2.5 billion years ago हुआ. उसके result में aerobic respiration evolve हुई because there was too much oxygen in the environment, or evolutionary pressure था to make use or to evolve in that direction, in that oxygen rich environment. तो some बैक्टीरिया बेसिकली उन्होंने ऑक्सीजन को यूज करना शुरू किया, एब्जॉर्ब किया, और ग्लूकोज को यूज करके वाटर प्रोड्यूस किया, कार्बन डाइऑक्साइड गिव आउट करने शुरू की, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट एनर्जी बनाई, जिसे एटीपी मॉलिक्यूल कहते हैं. ये प्रोसेस एरोबिक रेस्पिरेशन का कंपेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन जो प्रीवियस प्रोकैरियोट्स यूज कर रहे थे, दिस वाज अराउंड 16 to 18 times more efficient. तो अब फिर यूकैरियोट्स बेसिकली इवॉल्व होना शुरू हुए अराउंड 1.8 to 2 billion years ago, जब obviously the first bacteria ended up getting into another microorganism और वो उसका हिस्सा बन गया उस दूसरे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का, इट बिकेम एन ऑर्गेनल. तो एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप उन दोनों के बीच में एस्टैब्लिश हुई, जिसमें जो बैक्टीरिया जो था वो माइटोकॉन्ड्रिया बन गया. इट स्टार्टेड बेसिकली utilizing, or उसका जो genome था started producing energy for that unicellular organism. Now जो ये जो नए oxygen eaters थे, they were basically relying on the oxygen in the environment, inhaling that to survive. उस टाइम पे एक catastrophic event होता है जिसे snowball earth का event कहते हैं, around 2 billion years ago के करीब, जिसमें बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर्स नीचे आ जाते हैं और जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं कंपेयर टू प्रोकैरियोट्स, उनको एडवांटेज होता है सर्वाइव करने का. और सो जो ऑक्सीजन था कि जो प्रोसीजर वो यूज कर रहे थे टू बेसिकली यूटिलाइज दैट टू क्रिएट एनर्जी वाज मोर एफिशिएंट. जैसे मैंने कहा कि 16 to 18 times वाज मोर एफिशिएंट टू यूज एरोबिक रेस्पिरेशन. तो ऑक्सीजन को यूज करते हुए they basically increased the pace of their evolution as well, or they were basically, it was easier for them to survive जो snowball event था. Now volcanic activity फिर हुई जिसकी वजह से carbon dioxide वापस it was pumped into the environment, it raised global temperatures, और फिर snowball earth जो था that event where the entire earth was covered in ice and snow, it kind of started becoming normalized, और climate टेम्परेट कंडीशन और वार्मर कंडीशंस की तरफ आना शुरू हुआ. तो वंस ये जो पूरा स्नोबॉल इवेंट खत्म हुआ, एक तरह की नई नीशेस खुली फॉर द यूकैरियोट्स जो इवॉल्व हो चुके थे. इसकी सिमिलैरिटी आप इससे देखें, जब हम लोग डायनासोर्स की बात करते हैं, व्हाई कुडंट द मैमल्स इवॉल्व व्हेन द डायनासोर्स वर वॉकिंग ऑन अर्थ? बिकॉज they could not take over that space, क्योंकि उन पे एवोल्यूशनरी प्रेशर था, प्रेडेटरी प्रेशर था. तो जब डायनासोर्स वाइप आउट हुए, वी सॉ मैमल्स कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड, और फिर उनको एक तरह से एक बड़ा लैंडस्केप मिला जिसमें उनकी एवोल्यूशन अनइंटरप्टेड थी, अनचेक थी, तो उनको नई निशेस एक्सप्लोर करने की अपॉर्चुनिटी मिली. सिमिलरली जो ये 2 बिलियन ईयर्स अगो जो ये या 1.8 बिलियन ईयर्स अगो जो इवेंट हो रहा है स्नोबॉल अर्थ का खत्म हुआ है, इट हैज ओपन न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर दोस यूकैरियोटिक सेल्स. Now यूकैरियोटिक सेल्स डिफरेंट जो हैं फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल्स जो प्रीवियस सेल्स थे. उनमें ऑर्गेनल है, माइटोकॉन्ड्रिया है, उनका न्यूक्लियस इज कवर्ड इन अ मेम्ब्रेन एंड प्रोटेक्टेड. सिमिलरली दूसरी यूकैरियोट्स जो जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं था लेकिन क्लोरोप्लास्ट था, विच इज अनदर ऑर्गेनल जो प्लांट लाइफ यूज कर रही थी, अगेन जिसके तहत वो स्टार्च बना रही थी यूजिंग सनलाइट. नाउ अराउंड 1.5 billion years ago another ecological strain happened, जो कि most likely कोई catastrophic एक event हुआ होगा, maybe regional हो, maybe global हो, we don't know. But because of that there was lack of food
in that environment, or जो eukaryotes थे, they had to kind of come up with a strategy. What they did was वो एक दूसरे को consume करना शुरू हो गए. So they were surviving through cannibalism. जैसे वो Hannibal Lecter की एक movie थी, The Silence of the Lambs, where that serial killer is depending on cannibalism or eating other human beings. Similarly, ये हम देखते हैं उस eukaryotic life में 1.5 billion years ago, जब food scarce हो गया, they started eating each other. तो cannibalism शुरू हो गया. As a result of that, accidentally genetic material was exchanged. So जो consume कर रहा था अपनी prey को, एक और eukaryote को, उसका genetic material started fusing with the first eukaryote. So this is basically the first glimpse of sex that happened at that time. So I think Momo, I think we have to go on this next slide. Yeah, years ago. उस वक्त तक ये यूकैरियोट्स एक मल्टी सेल्यूलर कॉलोनीज में रहने शुरू हो गए. इनमें एवरी सेल वाज परफॉर्मिंग डिफरेंट ड्यूटीज. फिर वो आपस में इतने कंबाइंड और जुड़ गए और इंटरडिपेंडेंट हो गए. तो दे स्टार्टेड सर्वाइविंग एज वन यूनिट, कि एक कोई ऑर्गेनेल या एक कोई यूकैरियोट अलग से नहीं एग्जिस्ट कर सक रहा था, बिकॉज दे बिकेम इंटरडिपेंडेंट. This actually led to the rise of multicellular creatures, multicellular life, the first multicellular life from eukaryotic colonies that became interdependent. अब इनमें एवोल्यूशन यानी कि रिप्रोडक्शन भी सेक्सुअल तरीके से हो रही थी. तो इसके बाद जो नेक्स्ट एरा आए, जिसे एडिकैरियन एरा कहते हैं, इवेंचुअली कैम्ब्रियन एरा तक, ये मल्टी सेल्यूलर स्पीशीज यूजिंग sexual reproduction के through they started evolving extremely new novel traits into their offspring. So जी मोमो next slide. So this basically is the last slide. इसके बाद फिर मोमो दोबारा टेक ओवर करेंगी. तो हमने देखा कि जो फर्स्ट यूकैरियोट्स जो आए इनिशियली, जो उनकी 1.2 and 1.5 बिलियन ईयर्स अगो में जो गैमीट्स बनाए, जो उन्होंने अपने सेक्स सेल्स बनाए, वो एक ही साइज के होते थे, जिसे आइसोगमी कहते हैं. एक साइज के गैमीट्स वर रिलेटिवली इनएफिशिएंट, क्योंकि हर गैमीट का एक रोल है. कुछ गैमीट्स का रोल बहुत सिग्निफिकेंट होता है कंपेयर टू द अदर काइंड ऑफ गैमीट्स. नेचुरल सिलेक्शन ने ऑब्वियसली उन गैमीट्स को प्रेफर किया जो कि स्पेशलाइजेशन की तरफ थे. अब इसमें रोल की या उनकी सेक्सुअल रोल की एसिमेट्री की वजह से सर्टेन गैमीट्स गॉट had to do more work, and it was favorable, या वो एक evolutionary stable strategy थी by nature या by natural selection. तो जो larger gametes थे eggs, the females ended up getting the larger gametes. Why? क्योंकि they needed more resources, because the female gametes की responsibility थी that they evolved to basically house the embryo, उसको grow करना. तो female gametes had to be limited, क्योंकि obviously इतने बड़े gametes को produce करना requires a lot of energy. So energy optimization के लिए इन gametes का size basically बड़ा था, because आगे जाकर nurturing में इनका role ज्यादा था. तो उनकी production या इनकी the number of gametes was reduced or was limited. So that is why we say that female eggs are more expensive and they're more important in this role. Whereas जो smaller gametes थे, जो कि men के या male species के थे, they were smaller in size क्योंकि इनकी quantity ज़्यादा चाहिए होती थी, क्योंकि lots of sperm had to then try or make an attempt to eventually fertilize an egg. तो अगर आप देखें तो एक egg होता है जिसमें काफी सारे sperm उसको attack करते हैं. Eventually, usually one sperm gets into it to fertilize it. Because sometimes if two get into it, then you have twins, sometimes you have triplets. लेकिन फिर ये बहुत ज़्यादा rare cases होता है. Usually बहुत सारे sperms are basically available. They're produced inexpensively क्योंकि वो small size के होते हैं. And their role is just to transfer the father's genetic material into the mother. लेकिन जो उस embryo को form करना, from making it into a zygote, जो उसकी fertilization है, फिर उसकी embryonic development, उसके सारे जो organogenesis है, different organs form होने, वो सारे माँ की कोख में ये चीजें होती है. तो उसके लिए the female responsibility is more. So her gametes या her eggs are bigger in size compared to the male sperm. तो जो चीज छोटी है उसकी प्रोडक्शन ज्यादा हो सकी, क्योंकि उसमें लेस एनर्जी वाज रिक्वायर्ड.
जो चीज़ बड़ी थी, जो गैमीट, उसमें obviously more energy is required. You can't produce a lot of that. So you have to strike a balance between the size and the number of these gametes. So the number of gametes was reduced. It was limited in order to make sure the size was bigger, so that जो offspring था, जो embryo था, उसको development के लिए nutrition मिले, उसको एक structure properly मिले, उसको एक house मिले to kind of develop through the, from embryo to fetus and all the way to birth. Now, इसमें obviously when we say the gametes were of the same size initially, और फिर female gametes बड़े हो गए और male gametes छोटे हो गए, इसके बीच में eventually there were medium sized gametes as well, लेकिन वो disappeared. So we see a transition from similar sized gametes to medium sized gametes to all the way to female gametes being bigger or male gametes being smaller. So this was an evolutionary stable strategy and it worked out in the favor because माँ का काम हाउस करना, उसकी पेरेंटल इन्वेस्टमेंट और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज में ज्यादा देखने में आती है. हालांकि ऑल्टरनेटिवली वी डू हैव सर्टेन स्पीशीज लाइक द अंडर सी में जो सी हॉर्सेस होते हैं, उसमें एक्चुअली द फीमेल पुट्स द एग्स इनटू द मेल पाउच. तो मेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने स्पर्म से उसको फर्टिलाइज करके एक एम्ब्रियो को जन्म दे. तो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कहीं हमें एक्सेप्शंस भी मिलते हैं जहां पर मेल इज हाउसिंग द फीमेल द zygote या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू फर्टिलाइज इट. जी मोमो. Great. Um, we'll carry on with early evolution of sex in single cell eukaryotes. तो क्या हुआ कि जैसे नॉन कन्फॉर्मिस्ट ने बताया है कि अबाउट 2 बिलियन ईयर्स अगो फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल्स जो थे वो इमर्ज किए, जहां उनके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनेल्स थे, जो मेम्ब्रेन इनकेस जैसे न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और दे स्टार्टेड रिप्रोड्यूसिंग बोथ सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली. तो उनको वो जिनसी तौर पे भी रिप्रोड्यूस करते थे, जैसे कॉन्जुगेशन होती थी उनकी, जैसे आपको नजर आ रहा है ये मायोसिस भी हो रहा है और फिर डीएनए एक्सचेंज हो रहा है उनका, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती थी उनकी बर्डिंग के तरह से. तो ये जब शुरू हुआ तो दोनों किस्म की आ, दोनों किस्म की रिप्रोडक्शन हो रही थी. तो हम देख सकते हैं मादा और जो है नर और मादा या मेल और फीमेल को कैसे डिफाइन किया जाता है साइंस में. तो उसको गैमीट्स को देखकर डिफाइन किया जाता है बायोलॉजिकली. जिनके गैमीट्स बड़े होते हैं और नॉन मोटाइल यानी चल फिर नहीं सकते अपने आप, उनको कहते हैं फीमेल गैमीट्स या एग जैसे इंसानों में. और जो गैमीट्स और जो उनको प्रोड्यूस करती हैं उनको फीमेल या मादा कहा जाता है. और मेल गैमीट्स जो होते हैं वो होते हैं जिनका साइज छोटा होता है और वो मोटाइल या हिलजुलने का ये इख्तियार रखते हैं, हिलजुल सकते हैं. इनके पीछे आप देखें फ्लैजेला लगा हुआ है और वो मोटाइल हैं या ट्रैवल कर सकते हैं. तो ऐसे और जो उनको बनाते हैं उसको मेल कंसिडर किया जाता है. इस तरह मेल और फीमेल जिन्स जो है बायोलॉजी में डिफाइन की जाती है. तो गैमीट प्रोडक्शन बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि जब आप ये गैमीट्स को प्रोड्यूस करते हैं, वो प्रोसेस जो है उसमें क्या होता है कि आपको नजर आ रहा है शुरू में डीएनए रेप्लिकेशन होती है. पहले डिप्लॉयड सेल है ये किसी जानवर का, और आपको नजर आ रहा है कि ये मायोसिस कहते हैं इसको, ये प्रोसेस को जिसमें गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के. इसमें 2 स्टेजेस होती हैं. पहली स्टेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको नजर आ रही है. क्या होता है पहली स्टेज में कि पहले डीएनए रेप्लिकेशन हो जाती है, आपको इंडिविजुअल क्रोमैटिड है, आपको डबल नजर आ रहे हैं, हो गए, एक्स किस्म की शक्ल बन गई इनकी. और फिर क्या होता है कि क्रॉसिंग ओवर इवेंट होता है, या इसको रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं. तो वो जो बीच में 2 क्रोमोसोम है, एक आपकी माँ से है, एक आपकी बाप से है, वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और एक्सचेंज करते हैं पार्ट्स. ये जेनेटिक कॉम्बिनेशन, ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से आपको वेरिएशन आती है स्पीसीज में. आपको नजर आ रहा है कि एक ब्लू कलर है, एक रेड कलर का है, और बाद में मेयोसिस 1 के बाद आपको पता चल रहा है क्योंकि काफी उनकी जो हिस्से हैं
वो उन्होंने आपस में तब्दील कर दिए हैं, तो उससे जेनेटिक वेरिएशन आ गई और आखिर में आपको गैमीट्स ऐसे बनते हैं जो यूनिक हैं। कोई सिर्फ़ लाल है, कोई ब्लू एंड रेड है, कोई ब्लू है, से रिप्रेज़ेंट कर रहा है ये आपको कि जेनेटिक वेरिएशन हर गैमीट जो है 4 गैमीट्स में मुख्तलिफ होगा। इस ही वजह से आप जब भाई और बहनों को देखते हैं तो उनकी शक्ल जो है मुख्तलिफ होती है। क्योंकि ये रिकॉम्बिनेशन के दौरान आपको जेनेटिक वेरिएशन सारे क्रोमोसोम्स जो गैमीट्स बनते हैं, उनमें जो हैप्लॉइड क्रोमोसोम सेट है वो मिक्सचर होता है, जीन्स उसमें मिक्स अप हो जाती हैं इस मेयोसिस 1 की वजह से। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसकी वजह से सारी जेनेटिक वेरिएशन आती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक बहुत बड़ा एक उसका एडवांटेज भी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो नॉन कन्फॉर्मिस्ट ने बताया आपको कि कब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवॉल्व हुई। इट्स प्रीटी मच जब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आना शुरू हुए उसी ज़माने से शुरू हो गई थी, लेकिन हमें इसका सबूत क्या मिलता है फॉसिल रिकॉर्ड में? आपको पता है कि हर जानवर का फॉसिल नहीं रहता। पहले जो जानवर थे वो बहुत नरम थे और सॉफ्ट थे, तो हमें फॉसिल रिकॉर्ड मिलना शुरू होता है। जिससे सबसे पुराना फॉसिल है वो इज़ अराउंड अ बिलियन ईयर्स ओल्ड। एक रेड एल्गी है जो बेंजियोमॉर्फा प्यूबेसेंस उसका नाम रखा हुआ है। उसके आपको कुछ स्ट्रक्चर्स मिलते हैं और ये समझा जाता है कि वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता था ऑर्गेनिज्म। और आजकल के जो हैं वो रेड एल्गी वो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। लेकिन ये कुछ कंट्रोवर्शियल है अभी, क्योंकि इतना पुराना फॉसिल है। ये कनाडा में डिस्कवर हुआ था आर्कटिक के नजदीक। एक फॉसिल्स उधर मिले थे, उधर मिला था। अब चाइना में भी एक मिला है एलजी का फॉसिल जो कोई आई थिंक 600 मिलियन ईयर्स पुराना है, जो भी एलजी का है। तो एलजी तो एलजी हो गई, तो जानवरों में क्या हमें पता चलता है? एक ये अगर आप सर्च करेंगे फ्यूनीसिया, एक जानवर सबसे पुराना आपको फॉसिल्स मिलते हैं उसके। आपको इधर बड़े नज़र आ रहे हैं तो पेपर से ओरिजिनल जो मिले हैं, और ये समझा जाता है कि वो इस किस्म के स्ट्रक्चर थे जैसे ये ड्राइंग है, और वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते थे। इसका सबूत मिला है कि वो दे वर रिप्रोड्यूसिंग बोथ सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली। तो उसमें बडिंग भी हो रही थी, जैसे हाइड्रा की बडिंग होती है, उसमें से और निकल रहे हैं, और उसमें उनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी सबूत मिला। ये कोई ऐसे जानवर थे जो एक जगह फिक्स रहते थे, जैसे स्पंज होते हैं आजकल फाइलम पोरिफेरा के स्पंज जो होते हैं उसके उनसे रिलेशनशिप है इनसे। तो ये वो जानवर थे जो खुद मूव नहीं करते थे एक जगह से दूसरी जगह। तो ये 555 मिलियन ईयर ओल्ड ये फॉसिल मिला है। समझा जाता है ये सबसे पुराना जानवर था जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता था। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इतनी क्यों कॉमन हो गई? ये अ, बहुत इंटरेस्टिंग एक सवाल है जो साइंसदान पूछते हैं, और उसके बारे में आपको मालूम होगा कि एक चीज़ है, इसको कहते हैं रेड क्वीन हाइपोथेसिस। ये एक फेरी टेल थी थ्रू द लुकिंग ग्लास, जिसमें ये एक रेड क्वीन थी। वो और एलिस इन वंडरलैंड की एलिस जो थी उसके साथ भागती रहती थी। तो आइडिया था कि यू हैव टू कीप रनिंग टू स्टे इन वन प्लेस। तो इसका आइडिया इसलिए इसको कहते हैं रेड क्वीन हाइपोथेसिस। लेकिन इसका मतलब ये है कि हर वक्त एक जानवर को कॉन्स्टेंटली अपने आप में चेंज लाना चाहिए, ताकि वो एक अपनी स्टेटस को मेंटेन कर सके, अपनी स्पीशीज को मेंटेन कर सके, क्योंकि हर वक्त वो स्पीशीज का इट्स अंडर अटैक फ्रॉम अदर स्पीशीज जो आ, बाकी ऑर्गेनिज्म है उसके साथ compete कर रहे हैं रिसोर्स से। वो उसको खाने की भी कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है हमारे जिस्म में भी कितने बैक्टीरिया होते हैं, और देयर इज अ स्टेसिस या इक्विलिब्रियम, कि हम स्टेबल हैं वो भी स्टेबल हैं। लेकिन इसको मेंटेन करने के लिए जरूरी है कि हम कॉन्स्टेंटली जेनेटिकली उसको अपने आप को मॉडिफाई करें, और ताकि हम बेहतर अडेप्ट कर सकें बाकी ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट। इसको कहते हैं रेड क्वीन हाइपोथेसिस। और इसको कैसे इसका प्रूफ क्या मिला है आज तक? तो ये एक पेपर है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्होंने टेस्ट किया। ये न्यूजीलैंड के मड स्नेल थे।
और ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी रिप्रोड्यूस करते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी प्रोड्यूस रिप्रोड्यूस करते हैं, दोनों यूज़ कर रहे हैं। कई जानवर आप देखेंगे, हम आपको दिखाएँगे मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज़ रिप्रोडक्शन की, वो दोनों स्ट्रैटेजीज़ यूज़ कर रहे होते हैं या कोई और स्ट्रैटेजी उनकी होती है। तो ये दोनों तरह से रिप्रोड्यूस करते थे मड स्नेल्स। तो जब इन्होंने रिकॉर्ड देखा है कि कैसे जब उन पे कोई मुसीबत आती थी या उनकी कोई पैरासाइट कॉमन हो जाता था उनमें, तो वो ज़्यादा शिफ्ट कर जाते थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। तो बचने के लिए अपने आप को मोर रेजिस्टेंट और अपनी पॉपुलेशन को मोर रेजिस्टेंट बनाने के लिए वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे शिफ्ट कर जाते थे जब उन पे स्ट्रेस पड़ता था। जैसे उनके कोई पैरासाइट इन्फेक्शन है। तो इस पेपर ने ये जो था रेड क्वीन हाइपोथेसिस के बारे में पहली बार सबूत दिया कि अब जो ऑर्गेनिज़म्स दोनों रिप्रोडक्शंस करते हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ज़्यादा उनकी सर्वाइवेबिलिटी इम्प्रूव कर जाती है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि क्यों जानवर जो हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। हालाँकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काफ़ी इन्वेस्टमेंट ऑफ रिसोर्सेज़ होती है। आपको गैमीट्स बनाने पड़ते हैं, बड़े ड्रामे करने पड़ते हैं, लेकिन उस वजह से हमारी जो सर्वाइवल चांसेज़ होते हैं, चेंजिंग एनवायरनमेंट, जब एनवायरनमेंट जल्दी-जल्दी चेंज हो रही है या स्ट्रेस हो रहा है, उसमें हमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। तो अब चलते हैं आगे और सेक्सुअल सिलेक्शन के बारे में। आपने सुना ही होगा, ये एक एवोल्यूशन का मैकेनिज्म है और एक खास मैकेनिज्म है नेचुरल सिलेक्शन का, जिसको सेक्सुअल सिलेक्शन कहते हैं। इसको पहली बार डार्विन ने ही बयान किया था अपनी किताब डिसेंट ऑफ मैन में। एंड सिलेक्शन इन रिलेशन टू सेक्स, ये 1871 में पब्लिश हुई थी। उसने 2 प्राइमरी मैकेनिज़्म बताए थे इसमें सेक्सुअल सिलेक्शन के। एक है फीमेल चॉइस, कि जैसे आपने सुना ही होगा कि मोर जो होता है, मेल जो होता है, नर मोल जो होता है, वो बहुत उसके पर बड़े खूबसूरत होते हैं, वो एक डांस करता है, और फीमेल जो होती है बड़ी मामूली-सी उसकी रंगत होती है, लेकिन वो सिलेक्ट करती है कि किस मेट से उसने ताल्लुक कायम करना है या बच्चे पैदा करने हैं किसके साथ। वो अपना मेट जो सिलेक्ट करती है, वो फीमेल चॉइस होती है। ऐसे और बहुत सी भी चिड़ियाएँ हैं और जानवर हैं और मछलियाँ भी हैं, जो फीमेल जो है वो चॉइस करती है कि कौन-सा मेल पिक करना है। ये एक स्ट्रैटेजी है अपनी जीन्स आगे करने के लिए। इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। अगर मोर की रंगत ज़्यादा खूबसूरत होती है, तो उसको आसानी से जो प्रेडेटर्स हैं उसको खा सकते हैं, मार सकते हैं, लेकिन ये कंपटीशन है और उसकी फिटनेस को इंक्रीज़ करता है बाय हैविंग मोर ऑफस्प्रिंग। तो ये एक सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी है फीमेल चॉइस की, और एक किस्म की सेक्सुअल सिलेक्शन की एक किस्म है जो डार्विन ने ओरिजिनली डिस्क्राइब की थी। और एक और स्ट्रैटेजी है मेल मेल कंपटीशन। एक तो हो गया फीमेल चॉइस कर रही है, जो खूबसूरत है वो पिक करेगी। और एक और स्ट्रैटेजी होती है जहाँ मेल जो हैं वो आपस में लड़ाई करते हैं फीमेल के लिए, और जो जीतता है, जो अल्फा मेल होता है, जो ज़्यादा अग्रेसिव होता है, ही गेट्स टू मेट विद द फीमेल, और अपनी उसकी जीन्स आगे बढ़ती हैं जनरेशंस पे जनरेशंस। इससे ज़्यादा से ज़्यादा अग्रेसिव और स्ट्रॉन्ग आपको मेल्स नज़र आते हैं, और इन जो सेक्सुअल सिलेक्शन का नतीजा ये होता है कि आपको अ, एक एम्प्लीफिकेशन होती है उस उन क्वालिटीज़ की जो आपको ज़्यादा आपकी जीन्स फ्यूचर में स्प्रेड करेंगी। और ऑल्सो एक और इसका नतीजा होता है कि मेल और फीमेल की शक्ल में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इख्तिलाफ आता जाता है, क्योंकि मेल को प्रेशर है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसके पर लंबे हों या कोई और खूबसूरती उसमें हो या मस्कुलर हो या कोई चीज़ें जो फीमेल पिक करती हैं, वो लेने के लिए वो आपको डिफरेंस आ जाता है मेल्स और फीमेल्स में। इसको कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, के मेल और फीमेल्स का डिफरेंस बढ़ता जाता है। कई जानवर जो होते हैं इनमें मेल्स और फीमेल्स बिल्कुल एक जैसी शक्ल के होते हैं, आपको बहुत मुश्किल लगेगा कई जानवरों में ये डिफरेंशिएट करना कि कौन मेल है, कौन फीमेल है। लेकिन कई जानवर जो होते हैं उनके शक्ल बड़ी मुख्तलिफ हो जाती है नर और मादा की, और उसकी वजह है ये सेक्सुअल सिलेक्शन जब ऑपरेट कर रही होती है, तो उनकी शक्ल ज़्यादा से ज़्यादा मुख्तलिफ होती जाती है। ये पहली बार डार्विन ने बयान किया था।
ये आपको एक नेचर एजुकेशन का पेज है, वेब पेज, बाद में आपको रेफरेंसेस देंगे, उसमें बताया हुआ है कि अ, सेक्सुअल सिलेक्शन का प्रेशर कैसे काम करता है, एवोल्यूशन ऑफ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म ये जो शक्ल नर और मादा की मुख्तलिफ हो जाती है, उस पे इसका क्या रोल है सिलेक्शन प्रेशर का। तो आप पहली तस्वीर में देख रहे हैं कि मोरनी और मोर हैं, और मोर जो है डांस कर रहा है। इनको ये पता लगा कि जब पेरेंटल केयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेल की कम होती हैं, तो उन पे ज़्यादा प्रेशर होता है मेल्स पे कि वो ज़्यादा खूबसूरत हों, और फीमेल के लिए उन सिलेक्शन प्रेशर होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके पर लंबे हो जाते हैं ताकि वो मेट कर सकें फीमेल से। तो आपको ये लाइन नज़र आती है, बड़ी लंबी-सी लाइन है इधर लगी हुई है मेल पे। इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन है मेल्स में आ जाती है, क्योंकि उनका सिलेक्शन प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो कई मेल्स जो हैं, इसका ये मतलब है कि कई मेल्स जो हैं वो मेट कर सकेंगे, और कई मेल्स जो हैं उनको बिल्कुल सक्सेस नहीं होगी। तो सिलेक्शन प्रेशर ज़्यादा है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बढ़ जाएगा इनमें, और ज़्यादा से ज़्यादा ये टेल्स वगैरह खूबसूरत या फैंसी हो जाएँगी। बीच वाला केस जो है, बी, इसमें आपको नज़र आ रहा है कि दोनों पे, मेल्स और फीमेल्स पे, दोनों पे प्रेशर बराबर सा है। इधर एक ऐसी सिचुएशन है कि बोथ मेल्स एंड फीमेल जो हैं वो बच्चों की केयर करते हैं। तो ये उस उसकी कंट्रीब्यूशन मेल की ऑफस्प्रिंग की केयर में भी है, दोनों मिल के काम करते हैं, तो इसमें इनका शक्ल जो होती है मेल और फीमेल की ज़्यादा डिफरेंट नहीं होती, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कम होता है। और एक लास्ट जो है वो सिचुएशन है जहाँ मेल जो है, जैसे इन्होंने बताया सी हॉर्सेस में मेल रेज़ करता है, ये एक खास किस्म की बर्ड है जो अपने बच्चों को रेज़ करता है मेल। तो उस पे सिलेक्शन प्रेशर कम आ गया है, और फीमेल्स कई जो हैं वो फाइट कर रही हैं एक-दूसरे से अपने मेल को लेने के लिए। तो ये ऑपोज़िट हो गया, मोर का ऑपोज़िट इधर हो गया है। और फीमेल्स जो हैं, कई फीमेल जो हैं वो सक्सेसफुल होंगी ब्रीड करने के, और कई फीमेल जो हैं वो फेल हो जाएँगी। क्योंकि मेल्स ज़्यादा काम कर रहे हैं, ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, उनको ज़्यादा चॉइस है। तो ये है मेल चॉइस का केस, तो ये कम होता है, फीमेल चॉइस का केस जैसे पहला है वो ज़्यादा होता है। तो चलिए आगे चलते हैं, कुछ फीमेल चॉइस के आपको एग्ज़ाम्पल्स देते हैं। मोर का तो सबने ही सुना होगा कि मोर, जो मेल मोर होते हैं, बड़े डांस करते हैं, एलैबोरेट डांस करते हैं उसके लिए, और जो सबसे उसकी रंगत खूबसूरत होती है, परों के जो पूरी-पूरी आँखें बनी होती हैं, कंप्लीट होती हैं, वो सक्सेसफुल होता है। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी की थी जहाँ मोर के पर उन्होंने काट दिए थे, जहाँ उनकी अ, आँख सी बनी होती है, उसको आधा-आधा या पूरा-पूरा काट दिया था। तो वो जो मोर थे वो ब्रीडिंग में लेस सक्सेसफुल थे उनके निस्बत जो मोरों की पूरे पर और उनमें आँखें इंटैक्ट थीं। तो उनको ज़्यादा अट्रैक्टिव फीमेल्स ने समझा और उनसे ज़्यादा मेट किया। और जो जिनकी पर कटे हुए थे, या उनकी आँखें जो परों में थीं वो कुछ डैमेज थीं, या उनको रिमूव किया हुआ था, उनको कम सक्सेस हुई। इससे पता चलता है कि फीमेल चॉइस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है ब्रीडिंग के लिए, और जो फ्यूचर में जो बच्चे आते हैं उन वो आएँगे जिनके फादर्स जो थे वो सक्सेसफुल थे। एक और ये अ, बहुत फेमस केस है ऑफ विडो बर्ड्स, और विडो बर्ड्स की बहुत लंबी टेल होती है, आपको नजर आ रही है पीछे। और ये भी मोरों की तरह जिनकी टेल लंबी होती है, ये समझा जाता है उनको फीमेल्स ज्यादा पसंद करती हैं। तो इसमें क्या हुआ कि ये एक्सपेरिमेंट की थी इन्होंने, ये पेपर मैंने आपको दिखाया हुआ है। और उन्होंने क्या किया कि दुमें, कई विडो बर्ड्स की दुमें, मेल की दुमें काट दी, बिल्कुल छोटी सी नजर आ रही है आपको, शॉर्टन्ड टेल। कंट्रोल जो है ग्रीन, उसकी नॉर्मल टेल है। और जो एक्सपेरिमेंट है उसमें उन्होंने जो काटी थी टेलें वो चिपका दी गोंद से, कुछ विडो बर्ड्स अननेचुरली लॉन्ग कर दी। तो ये देखना चाहते थे क्या फीमेल्स जो हैं उनको कोई नेचुरल किस्म की टेल पसंद है, या जितनी लंबी करते जाएँ उनको पसंद आती जाएगी। तो इस पेपर ने साबित किया कि जो लंबी टेल, सबसे लंबी टेल थी जिनकी, जो आर्टिफ़िशियली उन्होंने चिपका के नकली लगाई हुई थी,
टेल की विग थी एक किस्म की, वो सबसे ज़्यादा रिप्रोडक्टिवली सक्सेसफुल थे। उनको सारी फीमेल्स पसंद कर रही थी, उनके साथ ब्रीड कर रही थी और जो छोटी-छोटी टेल्स वाले थे उनको रिप्रोडक्टिव सक्सेस बहुत कम थी। तो इससे पता चला कि ये एक रनअवे पॉजिटिव फीडबैक इफ़ेक्ट हो जाता है। अगर ये भी हो सकता है कि अगर कोई और प्रेशर ना हो कि जानवर उन दूसरे जो प्रेडेटर हैं उनको खा रहे हैं, तो आपको रनअवे इफ़ेक्ट हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा जिनकी फीचर्स ऐसे हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल ट्रेट्स ऐसे हैं जो फीमेल्स को पसंद हैं, वो बहुत ज़्यादा एम्प्लीफाई हो जाते हैं और इस वजह से एवोल्यूशन में आपको की शक्ल में तब्दीली आ जाती है जानवर की। ये एक और केस है फीमेल चॉइस का, मैं आपको अब एग्ज़ाम्पल्स दिखाऊँगी बड़े अच्छे-अच्छे एग्ज़ाम्पल्स नेचर से। ये फीमेल चॉइस का एग्ज़ाम्पल एक मछली होती है, ये इसका नाम है पफर फिश, ये जापान में भी होती है और जो मेल मछली जो होती है, जो नर मछली होती है, वो आप देख रहे हैं ना पीछे एक सर्कुलर बड़ा कैसल सा बनाया हुआ है, शेप बनाया हुआ है, ये अपने फिन को घसीट-घसीट के रेत में ये शेप बनाता है, कितना सिमेट्रिकल और खूबसूरत शेप बनाया हुआ है। और जितना सिमेट्रिकल और खूबसूरत ये शेप होगा, फीमेल उसको पसंद करेगी और उससे मेट करेगी। ये पिक करती है, फीमेल भी पिक कर रही है कि जिसका ये कैसल जो बनाया हुआ है या शेप बनाया हुआ है सर्कुलर, वो ज़्यादा खूबसूरत होगा, वो उसको पिक करेगी। तो फिर वो मेट करते हैं और फिर वो अपने अंडे दे देती है उधर और उसपे वो स्पर्म डाल देते हैं। तो ये रिप्रोडक्टिव सक्सेस आपको मछलियों में नज़र आ रही है कि कितनी खूबसूरत सिमेट्रिकल शेप बना रहा है ये मछली। मेल जो है नर जो है फीमेल को इम्प्रेस करने के लिए, ये फीमेल चॉइस की एक और एग्जांपल आपको नज़र आ रही है। तो दूसरी किस्म की जो थी सेक्सुअल सिलेक्शन, वो पहली बार जो डार्विन ने मेंशन की थी और अब हमें पता है कि असली चीज़ है वो मेल मेल कंपटीशन है, उसमें बहुत से अजीबो-गरीब एग्ज़ाम्पल्स आपको मिलते हैं नेचर में। आपको पता ही होगा ये एल्क हैं जो आपस में लड़ते हैं सींगों से, बकरियों में भी ये होता है और काफ़ी इस किस्म के जानवरों में लड़ाई होती है। बीटल्स भी लड़ते हैं, मेल बीटल्स एक-दूसरे से लड़ते हैं फीमेल्स को विन करने के लिए और जो जीतता है वो फीमेल के साथ मेट करता है। ये एक कॉमन स्ट्रैटेजी है। एक और ये स्ट्रैटेजी ये मेल-मेल कॉम्पिटिशन की स्ट्रैटेजी है स्पर्म कॉम्पिटिशन। तो इसमें क्या हो रहा है कि फीमेल किसी से दूसरे मेल से मेट किया है और ये मेल जो आता है ये स्पर्म उसका निकाल देता है उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से। उसके पास एक खास फिजिकल स्ट्रक्चर है स्कूप अप करने के लिए आइसक्रीम स्कूप की तरह और वो निकाल के अपना स्पर्म डिपॉजिट कर देता है। तो इससे ये दूसरे मेल्स को डिफीट करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी जीन्स को ट्रांसमिट कर रहे हैं नेक्स्ट जनरेशंस में। ये एक और स्ट्रैटेजी है मेल मेल कंपटीशन की जिसमें डिस्गाइज यूज हो रहा है या ये कुछ नकल कर रहे हैं या धोखा दे रहे हैं। ये पेपर आया था आइसोपॉड्स होते हैं मरीन आइसोपॉड्स एक ये कीड़े होते हैं छोटे छोटे और इनके मेल जो होते हैं वो 3 मॉर्फ्स में आते हैं, ये 3 शक्लों में आते हैं। 2 जो हैं वो छोटे-छोटे हैं और एक बड़ा अल्फा मेल होता है, एक बीटा होता है, गामा मेल बड़ा छोटा-सा नज़र आ रहा है आपको आ रहा है। और इनकी स्ट्रैटेजी ये है कि आपको नज़र आ रहा है कि ये फीमेल का ये डायग्राम है, इसमें हैरम है, उसकी एक सुराख है, उसमें फीमेल्स रह रही हैं और मेल ने गार्ड कर रहा है ऊपर। मोटा-सा ये जो अल्फा मेल है वो गार्ड कर रहा है और बाकी जो मेल कीड़े हैं वो आगे बाहर फिर रहे हैं, वो फीमेल दे आर शेप्ड लाइक फीमेल कीड़ास। तो ये आइसोपॉड्स जो हैं बेटा जो आइसोपॉड्स हैं उनकी शक्ल कुछ फीमेल्स की तरह है, तो वो उनको सस्पेक्ट नहीं करता। अल्फा मेल जो उनको जाने देता है अपने घर में और वो जाके घर में वो समझता है फीमेल आ रही है और जाके वो घर में जाके उनसे फीमेल से मेट कर लेता है। तो ये एक और अजीब-ओ-गरीब स्ट्रैटेजी है अपने जीन्स को आगे करने के लिए और मेल-मेल कॉम्पिटिशन की ये धोखे की स्ट्रैटेजी कि अल्फा मेल तो है बड़ा हार्म कर सकता है इनको बट द अदर मेल्स प्रिटेंड टू बी फीमेल्स और उनको सबको फिर इक्वल सक्सेस मिल जाती है मेटिंग से। तो ये भी एक बड़ी अजीबो-गरीब स्ट्रैटेजी है। आइसोपॉड्स मरीन आइसोपॉड्स की स्ट्रैटेजी है। ये है फुजियामा और कर्क पैट्रिक की किताब है एवोल्यूशन उससे है लेकिन ये ओरिजिनल पेपर भी मैंने आपको दिखाया हुआ है नेचर में था काफ़ी पुराना हो गया।
और एक और स्ट्रैटेजी मेल मेल कंपटीशन की बड़ी एक भयानक किस्म की स्ट्रैटेजी है इन्फेंटिसाइड की। आपने सुना ही होगा कई जानवर हैं जो अगर डोमिनेंट अल्फा मेल है, अगर वो हार जाए जैसे शेरों में, तो उसको या भाग जाता है और पीछे जो बाकी फीमेल्स रह गई हैं, उनके कब्ज हैं, उनको नया मेल जो है जो हराता है वो कब्ज को मार देता है। तो वो नहीं चाहता कि दूसरे मेल के बच्चे जो हैं वो ज़िंदा रहें और उनकी जीन्स आगे बढ़ें। और एक और भी वजह इसकी होती है कि अगर फीमेल के कब को मार दिया जाए और उसको वो दूध पिला रही हो तो वो एस्ट्रस में चली जाती है। सो शी बिकम्स फर्टाइल अगेन और उसको फिर ये दूसरा जो नया शेर आया वो प्रेग्नेंट कर सकता है। तो इसलिए ये क्या करते हैं, ये शेर जो हैं दूसरे शेर के बच्चों को मार देते हैं। ऐसी कुछ स्ट्रैटेजी मेरे ख़्याल में चिंपैंज़ीज़ में भी देखी जाती है कि मेल चिंप्स कभी-कभी बच्चों को मार देते हैं जो दूसरों के बच्चे होते हैं। तो इसको भी अ, हैंडल करने के लिए फीमेल ने भी स्ट्रैटेजीज़ इवॉल्व की हुई हैं कि वो मल्टीपल पार्टनर से इंटरकोर्स करेंगी ताकि पता ना हो कि किसका बच्चा है। तो लेकिन ये एक रियल स्ट्रैटेजी है जो आपको नेचर में मिलती है ऑफ इन्फेंटिसाइड के दूसरों के बच्चों को मार डालना ताकि मेल मेल कंपटीशन जीत सकें फीमेल के लिए। और एनिमल्स में बहुत ही मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रैटेजीज हैं रिप्रोडक्शन की। आपको खाली ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नजर आती है जैसे मैमल्स में होती है एक्स वाई क्रोमोसोम से, ये एक सिर्फ एक तरीका है। बाकी आपको जी डब्ल्यू या जेड डब्ल्यू क्रोमोसोम का भी सिस्टम होता है जो बर्ड्स में होता है, जो परिंदे हैं उनमें होता है। और उसमें आपको पता है कि ह्यूमंस और मैमल्स में एक्स एक्स फीमेल होती है, उसको कहते हैं होमोजाइगस, और एक्स वाई मेल होता है। इधर उल्टा हिसाब है चिड़ियों में। उधर जो हेट्रोजाइगस होता है, जो जी डब्ल्यू होता है, वो होता है वो फीमेल होती है। और जो दो सिमिलर क्रोमोसोम्स आई फॉरगेट डब्ल्यू डब्ल्यू और जी जी, वो मेल होता है। तो ये मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रेटेजी इवॉल्व हुई हुई है। बर्ड्स में ज्यादा होती है, छिपकलियों में भी होती है। और आपको और भी बहुत सी स्ट्रेटेजी सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की नजर आती हैं, जैसे हर्माफ्रोडिटिज्म के आप इस पे बात करेंगे, जहाँ मेल और फीमेल स्ट्रक्चर्स दोनों जानवर में होते हैं। एक जानवर में दोनों स्ट्रक्चर्स होते हैं और वो उससे रिप्रोड्यूस करते हैं। और आपको और भी बहुत से अजीब-अजीब एग्ज़ाम्पल्स अभी दिखाते हैं। ये है एक लेपर्ड स्लग मेटिंग, और ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। इनमें एक पीनस भी होता है और उसका ओपनिंग भी होती है फीमेल, और वो एक दूसरे को फर्टिलाइज करते हैं। दोनों में मेल और फीमेल दोनों चीजें हैं। और ये इनका एक मेटिंग रिचुअल होता है, स्लाइम में ऊपर हैंग करते हैं। और दो जो हर्माफ्रोडाइट्स हैं वो एक दूसरे को पेनिट्रेट करके दोनों को फर्टिलाइज एक दूसरे को करते हैं। इनका ये एक रिचुअल है जो आपको नजर आता है जगह जगह लटके में इस तरह, और इस तरह मेटिंग कर रहे हैं। उनमें से स्लाइम निकल रहा है, आपको नीला नीला स्लाइम नजर आ रहा है। तो ये हर्माफ्रोडाइट्स हैं और ये इस तरह रिप्रोड्यूस करते हैं। और अकेले खुद क्यों नहीं करते? ज़्यादातर जानवर जो हैं, वो अपने आप को सेल्फ फर्टिलाइज़ेशन नहीं करते क्योंकि उससे जेनेटिक जो डाइवर्सिटी है वो ज़्यादा बढ़ती नहीं है, इसलिए 2 मुख्तलिफ जानवर ये काम कर रहे हैं। लेकिन कभी-कभी आपको सेल्फी या सेल्फ फर्टिलाइज़ेशन भी नज़र आती है, जब उनके और कोई चांसेस नहीं होते, नहीं मिल रहा दूसरा स्नेल, तो या कोई दूसरी जानवर, तो वो फिर उसपे वो करके बच्चे पैदा करते हैं, हर्माफ्रोडिटिक ऑर्गेनिज़म्स। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। इसको सीक्वेंशियल हर्माफ्रोडिटिज्म कहते हैं। और ये आपको नज़र आ रहा होगा नीमो वाली ये क्लाउन फिश है। और इसका ठीक से उस फाइंडिंग नीमो मूवी में नहीं बताया था कि इनकी रिप्रोडक्शन कैसे होती है। और बड़ा उसको एक इंसानों का किस्म की फैमिली दिखाई हुई थी, एक मेल है, एक फीमेल है और बच्चा है उनका। असल में क्या होता है इनमें कि इनकी एक ग्रुप में, ये सोशल एनिमल्स हैं, एक फीमेल होगी और बाकी सारे मेल्स होंगे। और जब फीमेल मर जाती है या चली जाती है या गायब हो जाती है, तो एक मेल जो है वो फीमेल बन जाएगा। सबसे बड़ा मेल जो होगा वो अ, फीमेल बन जाता है। इसको कहते हैं सीक्वेंशियल हर्माफ्रोडिटिज्म। पहले मेल है,
लेकिन अगर फीमेल गायब हो गई तो इस सिचुएशन में वो एक जो सबसे बड़ा मेल है वो फीमेल बन जाएगा और बाकी जो है मेल्स उनके साथ फिर बच्चे पैदा करेगा। ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग केस है, इस पे लोगों ने रिसर्च भी कर रहे हैं कि क्यों और क्या मैकेनिज्म है जैसे ये मेल जो है वो फीमेल बन जाता है। ये एक शेयर किया था पेपर सब्सटेंशिया निगरा ने मेरे साथ। अम, और उसमें ये उन्होंने ट्रांसक्रिप्टोमिक्स या जो जीन्स एक्सप्रेस हो रही हैं मुख्तलिफ बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनमें उनको कैरेक्टराइज किया था कि जब ये ट्रांसफॉर्म होते हैं मेल से फीमेल तो क्या हो रहा है, उनकी जीन्स कौन सी जीन्स एक्सप्रेस हो रही हैं, कौन सी प्रोटीन्स बन रही हैं, क्या हो रहा है केमिकली बायोलॉजिकली जानवरों में जब ये मेल जो है वो फीमेल बन जाता है। ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज है। इनको पता चला कि एक जीन जो है अ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। इसको एक इसको कहते हैं अरोमेटेज जीन, क्योंकि अरोमेटेज उसका जीन प्रोडक्ट है या एंजाइम है जो बनता है और उसका काम ये है कि वो एंड्रोजन या मेल हार्मोन को फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजेंस बना देता है। तो एक ऐसा एंजाइम एक्सप्रेस होता है इन जीन से जो मेल को फीमेल हार्मोन बना देता है और ये इसका रोल है बहुत बड़ा ये ट्रांसफॉर्मेशन में। और ये पता चला कि ये जो जीन है इसको सिप19 एल्ब कहा हुआ है। ये एंड्रोजेंस को एस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरोन किस्म की चीज जो होती है उसको फीमेल हार्मोन बना देती है और ये ब्रेन में एक्सप्रेस होता है, ब्रेन में होता है और गोनेड्स में होता है। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ऑब्वियसली आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फीमेल बनाने पड़ेंगे, उनको फंक्शनल बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए ये गोनेड्स में या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में एक्सप्रेस हो रहा है, लेकिन पहले ब्रेन में होता है। तो also the fish has to think it's a female, right, to be receptive to the male और वो मेट करे ठीक से और बिहेव करे फीमेल की तरह। तो ये जीन जो है सिप19 ALB एक्सप्रेस होती ब्रेन में पहले। तो ये बड़ी ही हैरत अंगेज चीज है और ये जीन इसकी होमोलोगस जीन पता चलता है ये इंसानों में भी होती है और इंसानों में भी मुख्तलिफ जगह पे एक्सप्रेस होती है इंक्लूडिंग द ब्रेन एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। लेकिन इसका वही उसका फंक्शन है जो अ, ये टीलियोस या क्लाउन फिश में होता है और ये मेल हार्मोन को फीमेल हार्मोन बना देती है। और पता नहीं इसको और इस पे रिसर्च करेंगे, पता चलेगा कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है और भी कोई मैकेनिज़्म है कि इससे आपको एक और भी चीज़ नज़र आती है कि हर जीन जो जानदार में है उसकी होमोलोगस जीन दूसरे जानदारों में है। और जैसे-जैसे हम फैमिली ट्री में पीछे जिसको कहते हैं फाइलोजेनेटिक ट्री में पीछे जाते हैं, तो हमें वो उसमें डिफरेंस जो है ना ज़्यादा आ जाता है। जैसे करीब जाते रहते हैं तो आपको वो जीन्स सिमिलर से सिमिलर लगती हैं और कोई 20 से 30 हज़ार जीन्स में सबके साथ यही हो रहा है। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा एविडेंस है कि हम सब बाकी जानदारों से रिलेटेड हैं। और ये पहले माइंड यू ये पहले इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी। जीन सीक्वेंसिंग की जो टेक्नोलॉजी है लास्ट फ्यू इयर्स में बहुत ज़्यादा एडवांस हुआ है। पहले कोई 2001, 2002 के करीब कई 10-10 साल लगते थे आपको एक ऑर्गेनिज़्म को जी सीक्वेंस करने में, अब 1 दिन में हो जाता है। तो इस किस्म की रिसर्च में हमें और बहुत ज़्यादा डिटेल्स मिल रही हैं कि कितनी समारे ह सारे जो सीक्वेंस जो हमारा है, कैसे बदलता है। जैसे हम जेनेटिक ट्री जो है, जो हमारा रिलेशनशिप बताता है बाकी ऑर्गेनिज़्म से एवोल्यूशन के तौर के हिसाब से, वो आपको सबूत देता है। कोई 20 से 30 हज़ार जीन्स हैं, वो सारी आपको सबूत दे रही हैं कि वो सिमिलर हैं, जो हमारे करीबी रिश्तेदार हैं और जैसे-जैसे आप पीछे जाते जाते हैं, वो उसमें इख्तिलाफ आता जाता है। फिर भी सारे वर्टेब्रेट्स में आपको मछलियाँ हों या इंसान हो, आपको ये जीन एनालॉगस जीन मिल रही है। और इससे आपको बहुत बड़ा सबूत मिलता है कि एवोल्यूशन हुआ हुआ है इसका और पॉसिबिलिटीज़ मिलती हैं कि फ्यूचर में हम इसको शायद एक्सप्लोर कर सकें, इस पे और रिसर्च कर सकें, क्या इस जीन का रोल है? अगर ये जो लोग जिनको जेंडर डिस्फोरिया होता है, इस बारे में भी या कोई और जीन्स हैं जिनका रोल है। आई नो कि इस पे रिसर्च कुछ हो रही है और उसकी जिसको कहते हैं जेनेटिक्स के जो जो जीन्स एक्टिव हैं या साइलेंस्ड हैं मेथिलेशन से या किसी और तरीके से, उस पे भी रिसर्च हो रही है कि कई लोगों को जेंडर डिस्फोरिया जो होता है वो क्यों होता है या इसमें किस कुछ जेनेटिक या एपिजेनेटिक
कॉजेज हैं। इस पे आई थिंक सब्सटेंशियल नेग्रा भी बात कर चुके हैं गालिब के चैनल पे। बट एनीवे दिस इज इंटरेस्टिंग कि वही जीन जो आपको मछली में मिलती है, ये इंसान में भी मौजूद है। तो अब चलते हैं एक बड़ी ही दिलचस्प एग्जाम्पल के कि ये इसको कहते हैं लेस्बियन लिजर्ड। ये लिजर्ड सिर्फ फीमेल होती है, कोई मेल स्पीशीज में नहीं होते, और ये आ, एक दूसरे से सेक्स भी करती हैं। और अगर वो मेटिंग ना करें, मेटिंग बिहेवियर ना करें, हालांकि आपको पता है कोई स्पर्म नहीं है, तो मेटिंग बिहेवियर ऐसे ही, इट्स जस्ट बिहेवियर, इट्स नॉट एक्चुअली डिपॉजिटिंग जीन्स। लेकिन ये ज़रूरी है अंडे देने के लिए। अगर एक जो है मेंबर ऑफ दिस इसको कहते हैं न्यू मेक्सिको व्हिप टेल लिज़र्ड, अगर ये लेस्बियन लिज़र्ड ना करे सेक्स, तो वो बच्चे पैदा नहीं होते, अंडे नहीं देते वो। तो ये समझा जाता है कि शायद जो ये एक्ट जो है, जो मेटिंग का एक्ट है, वो उसको स्टिमुलेट कर रहा है एग रिलीज़ को। अ, लेकिन मेल जो है कंप्लीटली डिसअपीयर हो गए हैं स्पीशीज़ से। और ये जो स्पीशीज है, ये एक हाइब्रिडाइजेशन से रिजल्ट हुई है, कि जो बहुत क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज होती हैं, आपको सुना ही होगा आपने कि वो जब मेट करती हैं तो कभी-कभी उनके ऐसे बच्चे होते हैं जो फर्टाइल होते हैं। ज्यादातर फर्टिलिटी खत्म हो जाती है जब आप दूसरी स्पीशीज से, जैसे घोड़ा और गधे की मेट करें, फर्टाइल नहीं होते ऑफस्प्रिंग। लेकिन कभी-कभी अगर बहुत क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हो तो फर्टाइल होते हैं। जैसे फिंच की नई स्पीशीज इवॉल्व हुई है, सब्सटेंशिया ने इस बारे में बात की थी कि 40 साल तक उनको फॉलो किया है। वो भी हाइब्रिडाइजेशन से पैदा हुई। इससे क्या होता है कि आपको सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंजेस नहीं आ रहे, आपको बहुत सारा चेंज एकदम आ रहा है हाइब्रिडाइजेशन से। तो उससे ये जो है समझा जाता है कि ये लेस्बियन लिज़र्ड जो उससे पैदा हुई है, और ये बिल्कुल इसमें कोई मेल्स नहीं होते, ये बच्चे अपने खुद ही पैदा करती हैं और सेक्स भी करती हैं। और सेक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए, द एक्ट ऑफ सेक्स, नॉट एक्सचेंजिंग डीएनए, लेकिन द एक्टिंग आउट द सेक्स पार्ट टू रिलीज द एग्स और हैव चिल्ड्रन। और ये एक यूनिक स्पीसीज है, और इस मिलती जुलती है, इसको कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस, कि फीमेल खुद ही बच्चा पैदा कर रही है। ये कोई मायोसिस नहीं हो रहा उसमें, ये वो अपने बच्चे बाय जिस सेल फिशन एग्स बना रही है। और ये बहुत सिमिलर है दूसरी स्पीसीज के, लेकिन ये जो स्पेसिफिक स्पीसीज है, ये सिर्फ पार्थेनो ऑब्लिगेट पार्थोजेनेसिस से रिप्रोड्यूस करती है। कई स्पीशीज हैं जो दोनों कर सकती हैं, लेकिन ये वाली जो है, इसमें मेल बिल्कुल गायब हो गए, और सिर्फ फीमेल जो हैं वो बच्चे पैदा कर रही हैं और आगे उनकी स्पीसीज बढ़ रही है। बड़ी ही इंटरेस्टिंग और अजीब बात थी। तो ये भेजा था मुझे नॉन कन्फॉर्मिस्ट ने। और आप इस बारे में कुछ अगर कहना चाहेंगे, नॉन कन्फॉर्मिस्ट, जी ये जी स्पॉट। मामा। हुँ, तो ये फीमेल हाइना है, और बाहर इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि दिस इज अ मेल हाइना, बिकॉज जो ग्रोइंग की तरफ आप देखें तो एक जो एक्सटेंडेड इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, तो वो पीनस जैसा लगता है, बट दिस इज बेसिकली अ सूडो पीनस। ये एक्चुअली फीमेल हाइना स्पीशी है, और इसकी एवोल्यूशन इस तरह से हुई है कि इसका क्लिटोरिस इलोंगेट होकर बाहर आया हुआ है, which is part of its reproductive organ. It's basically a pseudopenis, but this is a female species. अब इसका स्ट्रक्चर अगर आप अंदर से देखें तो इसकी बर्थिंग कैनाल जो जा रही है, जो वजाइना है, फिर उसके बाद जहाँ से बर्थिंग कैनाल से बच्चा या इसका ऑफस्प्रिंग बाहर आता है, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रूट है इसका। इट्स काइंड ऑफ टर्निंग एंड इट इज वेरी नैरो, और फिर साइड से फिर वापस एक तरफ से निकल रहा है। तो इस स्पीशीज में नहीं सिर्फ सेक्स करना मुश्किल है, वजाइना यू कैन सी क्वाइट अप इनसाइड, एंड देयर इज अ सूडो पीनस हैंगिंग फॉर दिस स्पीशीज का मतलब, जो ऑब्वियसली अपने मेल स्पीशीज के साथ जब ये इंटरेक्ट करती होगी तो काफी डिफिकल्टी होगी इनको इंटरकोर्स करने में। इसके बाद जब ये फर्टिलाइज हो जाता है बच्चा, इसका जब रेडी हो जाता है बच्चा तैयार, आप देखें इसकी कोख में बच्चा है, इसका ऑफस्प्रिंग, कितनी मुश्किल से इसको पुश करके ऑब्वियसली बर्थ देनी पड़ती होगी। तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट बर्थ, सो उसके लिए सेक्स भी डिफिकल्ट है, इसके लिए बर्थिंग प्रोसेस भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। इनफैक्ट कुछ हाइनाज ऐसे हैं कि फर्स्ट टाइम बर्थिंग में दे डाई बिकॉज दे जस्ट नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। या तो वो मदर दैट इज नॉट एबल टू सर्वाइव, या उसका जो ऑफस्प्रिंग है इट बेसिकली डाइज ऑफ सफोकेशन, जो फंस जाता है उसमें। तो लेकिन वंस फर्स्ट बर्थ हो जाती है सक्सेसफुल, then subsequent births
और दिस हाइना स्पीशीज वो थोड़ी इजी रिलेटिवली इजी हो जाती हैं। तो ये अगेन दिस स्ट्रेटजी और दिस एवोल्यूशनरी डायरेक्शन स्पीशीज की जिसको इस हाइना स्पीशीज को ले गई है, इट इज समहाउ इंश्योरिंग स्टिल कि इसकी सर्वाइवेबिलिटी इज स्टिल इंटैक्ट, इट स्टिल एग्जिस्ट। बहुत ही कट थ्रोट और बहुत ब्रूटल स्पीशीज है ये। फीमेल हाइनास आर मच मोर स्ट्रॉन्गर। अगर आप उसकी सेक्सुअल एसिमेट्री देखें तो फीमेल हाइनास are physically a lot stronger and can overcome or overpower the male hyena. जी मामा। वेरी इंटरेस्टिंग। तो आगे चलते हैं। ये है एंगलर फिश। ये एक और बहुत इसकी भयानक सी शक्ल होती है, डीप सी में होती है और आपको ऊपर नजर आ रहा है मेल जो चिपका हुआ है। तो इनकी मेटिंग ऐसे होती है कि मेल जो होता है वो छोटा सा होता है और वो जहां भी उसको फीमेल नजर आती है वो उसको एकदम मुंह से ग्रैब करके उससे चिमट जाता है। और उसके बाद क्या होता है उस मेल के साथ, उसकी सारा सर्कुलेटरी सिस्टम, सारी उसके ऑर्गन्स डिजेनरेट कर जाते हैं और वो उसकी सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो फ्यूज कर जाता है फीमेल से। और सारी उसकी आंखें, उसके गिल्स, सारे ऑर्गन्स जो हैं वो डिके करके खत्म हो जाते हैं और खाली एक चीज रह जाती है, जो टेस्टिकल्स हैं उसके या गोनेड्स हैं वो खाली बढ़ते हैं, बाकी सब चीज डिसअपीयर हो जाती। तो ये एक बहुत उसके मेल के इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस के लिए बहुत नुकसानदेह है, लेकिन ये यही इनका सिस्टम है और इससे ही ये इवॉल्व हुआ है कि उनके आगे उनकी नस्लें बढ़ रही हैं। आपको इधर नजर आ रहा है कि मेल छोटा सा बिल्कुल गायब हो गया है, खत्म हो रहा है और खाली अटैच्ड है फीमेल से, उसकी कोई एग्जिस्टेंस अलग नहीं है। तो ये एंगलर फिश में ऐसे मेटिंग होती है, आप देख सकते हैं। बड़ी ही अजीब ये एग्जाम्पल है जहां मेल का रोल बिल्कुल खत्म हो जाता है मेटिंग के बाद, उसको अब्सॉर्ब कर लिया जाता है। और मोमो आई थिंक जी इनिशियली ये जो है एंगलर फिश का मेल, ये इनिशियली इट्स फीडिंग ऑफ द फीमेल, उसके रिसोर्सेज उसको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होते हैं। लेकिन आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर जब ये अपना स्पर्म इम्प्लांट कर देता है, ये फिर एब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब इसकी डेथ हो जाती है विद इन द फीमेल ऑर्गेनिज्म, राइट? नहीं, आई थिंक मैंने पढ़ा था कि इसके बाकी सारी जैसी अटैच होता है, ये एवोल्यूशन की जो किताब है फ्यूटियामा, उसमें ये एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसी अटैच होता है ही स्टार्ट्स लूजिंग हिज इंडिविजुअलिटी, कि उसकी आईज गायब हो जाती हैं, उसकी गिल्स गायब हो जाते हैं, लेकिन उसके जो गोनेड्स जो हैं वो बड़े होते जाते हैं और वो फीड कर रहे हैं, उसकी सर्कुलेटरी सिस्टम जो है फ्यूज हो गया फीमेल से। तो दे आर फीडिंग द टेस्टिकल्स टू मेक मोर स्पर्म और फिर जब रिप्रोडक्शन होती है तो वो स्पर्म रिलीज करते हैं। सो इट इज एक्टिव बट इट इज नॉट, इट लूजेस इट्स इंडिविजुअलिटी। certain part of it is active जो चाहिए होता है, हाँ, बाकी जो rest of the चाहिए। things are being और उसकी आंखें गायब हो absorbed. जाती हैं, आंखें, आपको आंखें नजर आ रही हैं, उसकी आंखें गायब हो जाती हैं, उसकी गिल्स गायब हो जाते हैं, उसको ब्लड से फीमेल के न्यूट्रिशन मिल रही है, लेकिन न्यूट्रिशन वो खाली इसलिए इस्तेमाल हो रही है कि वो स्पर्म बनाए, बाकी उसकी जो इंडिविजुअलिटी थी, जो उसकी आंखें थी, जो उसकी मोटिलिटी थी, वो सब खत्म हो जाती है। तो ये भी मुझे थोड़ी सी बड़ी अच्छी एग्जाम्पल लगा कि Very ये strange. वेरी स्ट्रेंज। और इनकी शक्ल देखें एंगलर, फीमेल एंगलर फिश की, क्या भयानक शक्ल है। जी। और ब्लैक विडो स्पाइडर का आपने सुना ही होगा। ब्लैक विडो स्पाइडर, ये हम एक जगह रहते थे, इधर काफी कॉमन था, जहाँ मुझे जगह जगह मिलता था वो गार्डन में। ब्लैक विडो स्पाइडर फीमेल जो होती है काली होती है बहुत बड़ी, और ये पॉइजनस भी होती है, तो आपको उसको मारना होता है। अगर आप देखें तो अगर काट ले बच्चों को तो ये मर भी सकता है इंसान से। उसके पीछे एक आवर ग्लास शेप होता है। तो ये ब्लैक विडो जो होती है वो मेल के साथ मेट करने के बाद खा जाती है उसको अक्सर, कि पहले वो मेट करने देती है या उसको फिर उसके बाद उसको पकड़ के खा लेती है, तो उससे न्यूट्रिशन भी मिल जाती है उसको। तो मेल का पर्पस बिल्कुल मेटिंग के बाद खत्म हो जाता है। इधर आपको नजर आ रहे हैं प्रेइंग मैंटिस। इनमें एक और ये कुछ भयानक सी तस्वीर है कि मेल जो था उसका सर ही काट के खा गई फीमेल। फीमेल बाइट्स द हेड ऑफ द मेल, उसके सर को निकालने के बाद भी वो मेट कर सकता है, उसके बाद भी मेट करता है। उसका सर चला गया है लेकिन वो मेट करके फीमेल से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। ये भी मुझे बड़ी अजीब सी बात लगी। तो चलें फिर कंक्लूजन्स पे चलते हैं। तो हमने आपको बहुत से एग्जांपल्स दिए जहां
ये सेक्सुअल सिलेक्शन हो रही है, मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज यूज हो रही हैं सेक्सुअल सिलेक्शन में, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पता है कैसे इवॉल्व हुई। पुराने जानदारों में कोई 2 बिलियन साल पहले शुरू हुई, जब यूकैरियोट्स बने, जब ही समझा जाता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी आ गई, उसके बाद मल्टी सेलुलैरिटी इवॉल्व हुई। तो सेक्सुअल सिलेक्शन जब प्रेजेंट हो तो उससे क्या होता है कि सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म या मेल और फीमेल का जो डिफरेंस होता है वो बढ़ जाता है। जैसे आप अगर इंसानों में भी आपको नजर आएगा कि कुछ प्रेफरेंसेस होते हैं कि एक मेल जो है हो सकता है कुछ खास खूबसूरत औरतों को सिलेक्ट कर रहे हो अपनी बीवियों के तौर पे, या फीमेल्स जो हैं वो कोई और चीजें देख रही हो मेल्स में। तो इसकी वजह से जो प्रेफरेंसेस होते हैं मेल्स और फीमेल्स की, उसकी वजह से ये बढ़ जाता है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, क्योंकि जब वो बच्चे प्रोड्यूस करते हैं उनके वही प्रेफरेंसेस होते हैं अगर जेनेटिकली बेस्ड हैं। अगर वो प्रेफर कर रही हैं मस्कुलर मेल्स को तो वो उनकी बेटियां भी प्रॉब्ली प्रेफर करेंगी, तो ये बढ़ता जाता है ये डिफरेंस जो होता है मेल्स और फीमेल्स के बीच में। और आपको बहुत सी स्ट्रेटजीज दिखाई, जैसे मेट सिलेक्शन की, विडो बर्ड, पीकॉक, बर्ड्स ऑफ पैराडाइज, बिल्कुल ये उनका भी बड़ा इलेबोरेट डांस होता है और फीमेल को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। और मेल मेल कंपटीशन की स्ट्रेटजीज भी बहुत हैं जो उनको सक्सेसफुल बनाती हैं, लेकिन उनमें काफी जो वीकर मेल्स जो होते हैं उनको दे लूज आउट। तो विद दैट हम आपको कुछ रेफरेंसेस दिखाते हैं जो हमने कलेक्ट किए हुए, जिनको हमने पढ़ के ये स्लाइड्स वगैरह आपके लिए बनाई हैं। इधर आपको एक किताब है, फुजीयामा का एवोल्यूशन की किताब है, उसमें बड़ी तफसील से ये स्ट्रेटजीज बताई हुई हैं, और बाकी बहुत से रेफरेंसेस हैं। कुछ इनमें नॉन कन्फॉर्मिस्ट ने भी किताबें मुख्तलिफ पढ़ी हुई हैं जो हमने इधर डाल दी हैं।